हेलो। स्वागत है एक और नए वीडियो में जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, पावर के बारे में। दिस इज आवर नाइन्थ लेक्चर। इससे पहले हमने 8 लेक्चर कंप्लीट करे हैं, जिसमें वी कंप्लीटेड एवरीथिंग, बेसिकली ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। And this is going to be our last lecture, theoretically last lecture of electricity chapter. After that, maybe one, two lecture will come out, and not maybe, for sure it will come out. Uh, that will be based on solving the previous year questions. Okay. Now, as we're discussing in this series, so now today we will try to understand about the electric power. Okay, and we'll try to understand the definition, some of the key formulas, which is very important. If you can expect, if you are expecting some questions from this topic in the boards exam, for sure some questions will come, and the questions will be directly based upon the formulas. So understanding the formula is important. Also, we will try to understand what is kilowatt hour, what is one unit. In your home you might have seen your electric bill comes per unit. So what is that one unit of energy? That we will try to understand, calculations and some of the examples we'll try to understand. Okay, so now shall we start? Okay, all set to go. Okay, now think of a situation. Ever thought, like, if you connect uh, voltage in a voltage, like let's say I'll do it, let's say this is your power supply. Okay, power supply, I'm drawing the battery just to show you. Let's say this is appliance 1, and this is, you connected the switch. Okay, now let's say this is your electric heater, and at the with the same one, if I remove this one and I connect the another one, okay, some another appliance, which is electric bulb. So why does it happen that the electric heater, which we know that it is more, it consumes more electric current. So why does it consume more electric current? Okay, so that thing we will try to understand in today's lecture, like why different electrical equipments consume different electric current under the same voltage. Okay, acha. Now, what you can understand why when we say about the power, electric power. Okay, so from here, one thing I can relate, that electric power tells us uh, tells us how fast electrical energy, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर नहीं समझ में आ रहा, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना जल्दी वो कंज्यूम कर रहा, electrical energy is used, or in other words you can say how fast electric current is being consumed. Okay, how fast electric current is being consumed. Acha, in this one, the important things to notice is the rate. Okay, how fast or slow. So it talks about the rate of what. Acha, we can connect it with the real life example. One real life example. Let's say uh, there is a person 1 and there is a person 2. I have a piece of work here and same piece of work here also. Okay, so this person completes the work in 60 minutes. Okay, and another person completes that work in 20 minutes. Okay, so which is more powerful? Who is more powerful? I should say, who is more powerful? Okay, clearly person 1 is more powerful, and person 2, blunder. But person 2 is more powerful, no? Because person 2 is more powerful, more power, and here comparatively less power. Right. So here time is a factor. Let's say some amount of work was there, and in how much time it can complete, that is nothing but defined as power. Okay. This is the simple understanding. Power
can be defined as amount of work done per unit time. Now you can clearly see that power and time are inversely proportional to each other. Okay, so from here it means that what, if I increase the time, power will decrease, and if I decrease the time, power will increase. Okay, so power and time are inversely proportional to each other. So clearly, if my speed is more, so that thing, that electrical equipment will have more power. Clear? अच्छा, लेट अस टॉक अबाउट द डेफिनेशन. वैसे डेफिनेशन वगैरह एग्जाम में यू कैन एक्सपेक्ट वेरी लेस, बट ठीक है, कोई बात नहीं. डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ. ठीक है. इलेक्ट्रिक पावर की, इलेक्ट्रिक पावर what is it? It is the rate of, it is the rate, I can say rate at which electrical energy is consumed. ठीक है, सेम चीज है, जो बातें मैं बोल रहा हूँ वही चीजें मैंने लिख दी. इलेक्ट्रिक पावर इज, इट इज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड. क्लियर है? क्लियर है? ठीक है. अच्छा, अभी ये क्लियर हुआ तो बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूला और डेरिवेशंस की. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे कैसे डिराइव करते हैं, उसके बाद हम उसके यूनिट्स की बात कर लेंगे. देखिए, फॉर्मूला की बात कर लेते हैं. पहली बात तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करके इन दिस सेक्शन आई कैन फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. देखिए, जैसा कि मैंने बोला, पावर इज डिफाइंड एज वर्क बाय टाइम. ठीक है, तो पहले वर्क पे बात कर लेते हैं. ठीक है, वर्क इज नथिंग बट ब्लू वी आई, वेट, यहां से अगर मैं समझाऊं तो ये ज्यादा बेटर आप कैच कर पाएंगे. वेट. ओके, सी. Why is this so small? No, just give me a second. Yeah, it is quite okay. Now, remember the formula for electric potential. V is W by Q. Okay, V is W by Q, means total voltage, total potential along potential difference across the wire is defined as the total amount of work done per unit charge. So from here, can I write work equals to V into Q? ठीक है, same thing I will use it here. ठीक है, see. So power here, let's see, P, I can write it as what? VQ. From here, VQ and divided by T. अच्छा, what is the value of Q? अच्छा, one thing I will say, generally in the book you will find three formulas, but I can get more than three. Okay, so the basic one, main thing that you need to remember is the P equals to VQ by T, work by time. Okay, work, what is the work done, divided by whatever the time taken. Okay, if you remember this one, you can convert this. If you remember the earlier formulas that we discussed in this chapter, at the end I'm gonna write the all formulas at once. See, from here, if you put the value of Q, you know that I is equals to Q by T. So Q is equals to IT. I can write it here. So I can write V into Q is equals to I into T divided by T. So T से T cancel हो गया, and I can write it down as VI. सो पावर का क्या फॉर्मूला निकल के आ गया? P इज इक्वल टू वी आई. ठीक है. अच्छा, इसमें अगर V को चेंज कर दे तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर V इक्वल टू आई आर अगर हम पुट कर दें, ठीक है, तो यहाँ से आई आर इंटू आई, सो आई स्क्वायर आर आ जाएगा. ये एक फॉर्मूला हो गया. अच्छा, इस वाले में अगर मैं इन दोनों को चेंज कर दे रहा हूं तो ये एक फॉर्मूला आ रहा है. ठीक है. अच्छा, इस वाले में अगर मैं इसको चेंज कर दूं, Q को, देखते हैं, V P इज इक्वल टू वी क्यू डिवाइडेड बाय T. अच्छा, सोच सकते हो, ट्राई करो. एक्चुअली मेरे को लाना क्या है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर लाना है. यहां से ट्राई करो कि वी स्क्वायर बाय आर मेरे को कैसे ला सकते हैं. देखो, स्टेप समझाता हूँ. देखो, हम भी यहाँ पे ऐसे रट के नहीं आते थे, बट समझ सकते हैं कि करना क्या. देखो,
अभी मेरे को लाना क्या है, फाइनली वी स्क्वायर बाय आर लाना है। ठीक है, मतलब कि वी और आर के टर्म में बस लाना है चीजें। तो वी को हम रहने देते हैं, क्यू को हम क्या चेंज कर सकते हैं, आई टी लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि टी और टी कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है मेरे को वी और आई। ठीक है। अच्छा, वी को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, आई को हम चेंज करते हैं। आई को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से I का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V बाई आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से I का वैल्यू V इंटू वी बाई आर कर दो, देख लो आ गया वी स्क्वायर बाई आर, कोई बड़ी बात नहीं, नॉट अ बिग डील। तो तीन चीजें जो हमारे पास निकल के आ रही है, पावर का फॉर्मूला जो है, क्या क्या निकल के आ रहा है। पहला बात तो V इंटू आई, देख लो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पहला। दूसरा क्या है, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। और तीसरा क्या आ गया, वी स्क्वायर बाय आर। जैसा जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला। बट बेसिकली जो याद रखना है ना, वो ये याद रखना, P इज इक्वल टू वी क्यू बाई टी, वर्क बाय टाइम। और उससे भी बेसिक अगर याद रखना है तो वो ये याद रखना है कि जितना भी वर्क होगा डिवाइडेड बाय टाइम, उससे हमारा पावर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां पे हमने बात करी थी कि हीट जो है वर्क डन है, और जिसका कि यूनिट होता है वो जूल होता है। तो बात करें अगर यूनिट ऑफ वर्क पावर की, यूनिट ऑफ पावर की, तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ पावर जो हो जाता है अपने पास वॉट आ जाता है, डिनोटेड बाय डब्ल्यू। ठीक है, तो यूनिट ऑफ व्हाट इज डब्ल्यू। अच्छा, जब यूनिट की बात होगी तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है दैट डिफाइन डिफाइन वन वॉट, डिफाइन वन वॉट। तो क्या लिख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर, डिफाइन वन वॉट, सॉरी, डिफाइन वन वोल्ट, डिफाइन वन एम्पियर, डिफाइन वन ओम। ये सारी क्वेश्चंस हम थ्रू आउट दिस चैप्टर हम करते आए हैं। तो फ्रॉम दैट यू कैन ट्राई टू गेट एन आइडिया। सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, वन वॉट लिख दूं, ये भी करना पड़ेगा, कुछ तो कर ले भाई, ये थोड़ा सा कुछ तो कर ले। ठीक है, देख, इट इज द, अच्छा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर पूछ देते हैं, वन वॉट क्या होता है, वन ओम क्या होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इट इज द पावर कंज्यूम। अच्छा, एनालॉजी सेम है, देखो, P इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो इसमें से किसी एक को मैं यूज कर लूं, देख लो, जैसे ये वाला पार्ट है ना, इसमें V का वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं और I का वैल्यू भी 1 पुट कर दूं, तो मेरा P का कितना वैल्यू आ जाएगा, 1 वॉट। ठीक है, तो ये चीज मैं बस लिखने वाला हूँ, यही आइडिया है, हर एक वाले में हम वही करते हैं। ठीक है, इट इज अ पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस दैट carries how much electric current, 1 ampere of electric electric current operated। थोड़ी बहुत इंग्लिश यार, इंग्लिश इधर ऊपर नीचे हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑपरेटेड एट अ वोल्टेज, या फिर बेटर हम से पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, क्लियर हुआ, ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आई कैन से, अगर मेरे को 1 वॉट लिखने का है, सो इट इज नथिंग बट 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड विथ 1 एम्पियर। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ठीक है, अगर ये क्लियर हुआ देन लेट मी इरेज दिस वन, क्योंकि ये बोर्ड लैग कर रहा है। या फाइन, ऑल ओके ना। 1 वॉट को हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसमें जब भी न्यूमेरिकल्स, इफ यू गेट द न्यूमेरिकल्स, तो उस टाइम पे कुछ यूनिट कन्वर्जेंस याद रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द यूनिट कन्वर्जेंस। ठीक है, अच्छा, कुछ चीजें बहुत इजी है, जैसे 1 वॉट, सॉरी, 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट। वन माइक्रो वॉट वगैरह इसमें नहीं आता, इसलिए शायद उसकी बातें करना वेस्ट है।
बेटर है हम वॉट यूज करें। अच्छा, एक और चीज ध्यान देने वाली है, एवरीथिंग व्हेन यू आर यूजिंग यू मस्ट यूज इन द एसआई यूनिट, लाइक टाइम सेकंड में डाल रहे हैं, पावर वॉट में डाल रहे हैं, ये सारी चीजें डाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें 1 किलोवाट आवर की, ठीक है, 1 किलोवाट, अच्छा ये 1 किलोवाट आवर है क्या? ये एक एनर्जी है। जैसे देखो, मैंने बोला पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। अच्छा, वर्क आता कहाँ से? जिस बॉडी में एनर्जी हो, एनर्जी इज द कैपेसिटी, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो जिसके पास कैपेसिटी है वो एनर्जी है, एनर्जी जो है कन्वर्ट होता है किसमें? वर्क में। तो फ्रॉम हियर कैन आई से कि जैसे अगर वर्क जो एनर्जी से आ रहा है तो मैं डायरेक्टली यही लिख दूं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। लिख सकते हैं। अच्छा, पावर को आप डाल दो वॉट में और टाइम को डाल दो सेकंड में, तो वॉट वॉट सेकंड हो जाएगा। बट वो बहुत छोटा यूनिट होता है एनर्जी का, उसमें इट इज रियली रियली स्मॉल यूनिट। सो हम किलोवाट आवर यूज करते हैं, मतलब कि पावर को डाल दिया किलोवाट में और टाइम को डाल दिया आवर में। तो 1 किलोवाट आवर ये जो है ना, ये एक्चुअली पावर नहीं है, ये एनर्जी है। इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो 1 किलोवाट आवर, अच्छा 1 किलोवाट आवर की अगर हम बात करें, आई मस्ट नॉट राइट लिख दिस किलोवाट आवर। सो इसमें क्या आ जाएगा? 1000 वॉट आ जाएगा इनटू कितना? 3600 सेकेंड आ जाएगा। तो टोटल टोटल ऐड करो, इसको लिख सकते हैं 3.6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड। ठीक है। अच्छा, वॉट सेकेंड क्या है? यही जूल है रे, ये जूल है, क्योंकि ये एनर्जी है तो जूल में ही आएगा ना। 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। 1 किलोवाट आवर जो है इट इज 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, यही है। ठीक है। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला था, ये जो 1 किलोवाट आवर है इसी को बोल देते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर कोई, जैसे 1 यूनिट को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? जैसे कि इफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज देयर ऑफ 1 किलोवाट, ओके, एंड इफ इट इज रनिंग फॉर 1 आवर, तो उतने रन करने में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको रिक्वायर होगा, दैट इज ओनली 1 यूनिट। देखो फिर से क्या बोल रहा हूँ। If any electrical equipment is there which is of 1 kilowatt and if it runs continuously for 1 hour, then it consumes an energy that is 1 unit। समझ आया? समझ आया? ठीक है। ये होता है 1 यूनिट, और 1 यूनिट में कितना जूल एनर्जी होगा? 1 यूनिट बोलो या 1 किलोवाट आवर बोल दो, बोथ आर सेम। सो इनमें होता है 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। कन्वर्जेंस में कंफ्यूज नहीं होने का। एक और चीज जो आप गाड़ियों के इंजन्स वगैरह में ये बातें की जाती है, एचपी में आता है पावर, कितने पावर का इंजन है, कितने एचपी का इंजन है। एचपी क्या है? पावर है। ठीक है। तो 1 एचपी में कितना आ जाता है? 746 वॉट। अच्छा, अभी 746 ही क्यों लिया? डोंट आस्क मी, यू ट्राई टू डू थिंक बाय योरसेल्फ। खोजो, ढूंढो। ठीक है। सारे क्वेश्चन क्या टीचर से एक्सपेक्ट कर रहे हो? ढूंढो। these are some curious questions। ओके, कि 1 एचपी में 746 वॉट ही क्यों होते हैं? दूसरा 1000 क्यों नहीं हुआ, 500 क्यों नहीं हुआ? खोजो, ढूंढो। ठीक है। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ओके ओके ओके, 1 यूनिट आई डिफाइंड। आई गेस वी मस्ट डू क्वेश्चंस इसके बाद। अच्छा, मैं ये इसको कंप्लीट, एक और चीज जो है मैं कंप्लीट कर ही देता हूँ, देन वी विल डू द क्वेश्चन। एक लास्ट जो फॉर्मूला है दैट यू कैन अंडरस्टैंड। मान लो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किसमें? इन किलोवाट आवर, कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगा, ये डिपेंड करता है कितना? नंबर ऑफ अप्लायंस है। ठीक है। इनटू उसका क्या पावर है? पावर किसमें? इन वॉट टाइम्स आवर डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है। क्या लिख दिया सर आपने, क्या लिख दिया? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया तो छोड़ दो, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लो 1 किलोवाट आवर का अप्लायंस है जो कि अगर 1 घंटे के लिए यूज हुआ, तो इससे 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा। पर मान लो कि
1 किलोवाट आवर का 2 अप्लायंस है जो एक साथ यूज हो रहा है 1 घंटे के लिए, ठीक। तो यहाँ से 2 यूनिट का बिजली उठेगा ना, 2 यूनिट का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा, तो वही चीज है, ठीक है। अगर यहाँ से समझ में आए तो यहाँ से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल फाइन। तो हमारा थ्योरी यहाँ पे खत्म होता है। क्लियर। देख लूं मैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, नहीं तो मैं इतना भाषण कर दिया, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होगा। हो रहा है, एवरीथिंग गोइंग फाइन। वी सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अभी कुछ नहीं, नहीं अभी 1 मिनट, भागने का नहीं, भागने का नहीं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड। कुछ क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चंस एंड वी आर वाइंडिंग अप दिस चैप्टर सक्सेसफुली। ओके। I don't know how many of you are still there from the very first lecture. We are connecting the every dot. ठीक है। स्टार्ट करना इजी होता है, ठीक है, एंड करना मुश्किल है, ठीक है। सारे लास्ट लेक्चर तक जब जो भी आप लोग आ पाए, वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन 1। ओके, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सेम, फिर से वही बातें हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन के साथ, बट फर्स्ट यू विल ट्राई द क्वेश्चन, देन आई विल टेल यू द आंसर। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, व्हाट हैपेंस टू पावर इफ करंट इज डबल्ड एंड रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये दो क्वेश्चन नहीं है भाई, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, कि करंट को डबल कर दिया, रेजिस्टेंस रिमेन द सेम, इसकी जरूरत भी नहीं थी एक्चुअली। ठीक है, कोई नहीं। ट्राई 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 ट्राई, कोशिश कीजिए, अगर हो पा रहा है तो बढ़िया, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। ओके, पॉज करके वीडियो के लिए ट्राई कीजिए। अगर हो जाता है देन प्ले द वीडियो, आई एम स्टार्टिंग द सॉल्यूशन। ओके, चलिए। अ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, व्हाट हैपेंस टू पावर इफ द करंट इज डबल्ड। पावर की बात हो रही है, अगर पावर की बात कर ले तो करंट V और आई स्क्वायर R की बात कर ले। देखो P का 3 फॉर्मूला था। P इज इक्वल टू, देखो मैं बार बार फिर से मैं रिवाइज करवाता हूँ, V इक्वल टू V I। हाँ। हाँ। रियली, रियली। P इज इक्वल टू V क्यों उठाना, क्या है यार। P इज इक्वल टू V Q V I H, यार मैं खुद कंफ्यूज कर रहा हूँ। P इज इक्वल टू V I पहला, और दूसरा क्या था, आई स्क्वायर आर, तीसरा था V स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये तीन चीज, 1 2 3। तो इसमें कौन सा यूज होने वाला है, देख लो। बात कर रहे हैं ये लोग किसकी, करंट के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर ले। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हम यूज कर लेते हैं। तो अगर मान लो ये P था जिसमें स्टार्टिंग में करंट आई था और रेजिस्टेंस आर था, तो ये हमारा पावर था। P डैश हम निकालते हैं जिसमें कि करंट को जो है बोल रहे हैं कि डबल कर दिया, तो 2i कर दिया, स्क्वायर स्क्वायर हो गया और r रिमेन्स द सेम। तो यहाँ से 4i स्क्वायर हो गया इंटू आर। अभी देखिए, इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर। अच्छा, ये आई स्क्वायर आर क्या है, हमारा इनिशियल P है, तो 4p लिख सकते हैं। तो हमारा पावर जो है क्या हो गया, 4 टाइम्स से बढ़ गया, क्योंकि पावर एंड इलेक्ट्रिक करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर हुआ। इजी है, इजी है, इजी है। ठीक है, हो गया। ठीक है, हो गया। तो वी आर गोइंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्विकली क्विकली स्टार्ट फास्ट, जल्दी जल्दी करने का। ठीक है, ये सब क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है यार, टेंशन नहीं लेने का। अगर नहीं हो रहा है तो वो गो वॉच द लेक्चर अगेन, फिर से पहले थ्योरी अगर तुम्हारा सही है अच्छे से सारा चीज, देन वी कैन डू द क्वेश्चंस क्विकली फास्ट। ठीक है, ओके फाइन एवरीथिंग, आई डोंट नो व्हाट्स द सेटअप। ठीक है, चलता है यार, क्या करने का है, शकल थोड़ी देखने का है, लेक्चर देखने का इधर। ओके, विच हैज मोर रेजिस्टेंस, 100 वॉट बल्ब और 60 वॉट बल्ब। क्या क्वेश्चन है, बताओ यार, बताओ 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 जल्दी बताओ। 100 वॉट बल्ब में ज्यादा रेजिस्टेंस है या 60 वॉट बल्ब में। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होने का, ये नहीं पूछ रहा है कि 100 वॉट बल्ब में ज्यादा पावर है या 60 वॉट बल्ब में ज्यादा पावर है। पावर तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा है, दिख रहा है, लिखा हुआ है। पूछ रहा है रेजिस्टेंस किस में ज्यादा है। ठीक है, तो कौन सा एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा, कौन सा एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा, देख लो ये वाला लेना पड़ेगा, वी स्क्वायर बाय आर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि दोनों एक पोटेंशियल डिफरेंस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा, जिसका पावर ज्यादा होगा, देखो जिसका पावर ज्यादा होगा आर कम होगा,
क्लियरली दिख रहा है ना, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर पावर जिस बल्ब का ज्यादा होगा इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अरे देखो, आराम से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी बल्ब में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा पावर वो खा जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो खा जाएगा ना, तो फिर क्या फायदा उस बल्ब का। तो रेजिस्टेंस कम रखने का तो पावर ज्यादा होगा। मतलब कि 100 वॉट बल्ब में क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होंगे, कम होंगे क्योंकि पावर ज्यादा है। और इस वाले बल्ब में क्या होंगे, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ज्यादा होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। देख लो फिर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे। फॉर्मूलाज अगर याद आ रहे हैं तो क्वेश्चंस जल्दी जल्दी होंगे, अगर नहीं होंगे तो आप कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता आएंगे। ठीक है, हो गया, दो क्वेश्चन हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन कर लें। चलिए, क्विकली 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 वी आर मूविंग। अभी हम लास्ट चैप्टर के लास्ट पार्ट पे हैं, तो इसमें हम अटकने का नहीं रे। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने का। ऐसे ही हम प्रीवियस क्वेश्चन जब हम करेंगे उसमें भी ऐसे ही स्पीड जाने वाली है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राई करो। देखो ये से मैं रोक नहीं रहा हूँ, यहाँ पे लेक्चर देखने का नहीं। यू कैन जस्ट क्विकली क्लिक योर पॉज बटन, रोक दो वीडियो एंड देन गो फॉर द सॉल्यूशन। खुद से ट्राई करो, वो बार अच्छे से करो। एक बार दो बार तो करना बनता है यार। आइंस्टीन थोड़े है ना, तू आइंस्टीन है ना मैं आइंस्टीन हूँ। ठीक है, तो करने का, ट्राई करने का एक बार। ठीक है, एंड देन कम बैक टू। मैं कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट करूँ। ठीक है, ट्राई कर लिया तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आई बिलीव, मुझे विश्वास है आप कर रहे होंगे। कर लीजिए, थोड़ा सा कर लीजिए। ठीक है, अगर करेंगे तभी आपका फायदा होगा, लेक्चर देखने से नहीं फायदा होगा। न्यूमेरिकल्स आर नॉट टू वॉच, करना होता है उसको। ठीक है, 60 वॉट एंड 40 वॉट बल्ब connected in parallel across a battery to 20 volt, find the amount of current flowing in the circuit। देखो 60 वाट एंड 40 वाट बल्ब, देखो पैरेलल अक्रॉस। ठीक है, पहले फिगर ही ड्रॉ कर। मान लो ये एक बल्ब है और ये एक बल्ब है। हाँ, हम बल्ब को ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे क्योंकि बल्ब भी एक रेजिस्टर होता है। तो या वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। यहाँ पे बल्ब लगा दी, बैटरी लगा दिया और स्पीड प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। वोल्टेज हमारा दिया हुआ है V इज इक्वल टू 20 वोल्ट दिया हुआ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, आई हमें नहीं पता है। और R, अच्छा पावर दिया हुआ, सॉरी 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 सॉरी। तो हमारा एक पावर जो इसका मान लेते P1 जो दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, 60 वॉट लिख लेते हैं भैया, नहीं तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। और P2 जो है हमारा 40 वॉट दिया हुआ है। अच्छा, दिक्कत ये है कि जो पावर दिया हुआ है, यहाँ पे हमें पावर का डायरेक्टली फॉर्मूला कुछ है नहीं कि जिससे हम कंबाइन कर सके। हमें एक्चुअली चाहिए क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। वी वांट इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ताकि हम ओम्स लॉ लगा के डायरेक्टली आई का वैल्यू फाइंड कर सके। ठीक है, अच्छा ये हमारा एम। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। पहले वाले केस में P1 हमारा दिया हुआ 60 वॉट, V तो सेम रहेगा। अगर आपको याद हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद रखनी बहुत जरूरी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रिमेन सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स। ठीक है, तो वोल्टेज हमारा क्या रह रहा है इसमें, 220। तो यहां से R निकाल सकते हैं क्या। अरे भाई ये याद होगा फॉर्मूला तब तो याद आएंगे ना। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, P1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा एक काम कर लो, R1 R2 कर लो, नहीं तो तुम लोग जो है ना इसे भी कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारा R1 आने वाला है, यहाँ पे हमारा R2 आने वाला है। तो यहाँ से हम अगर करेंगे तो हमारा का आ जाएगा, वी स्क्वायर तो अपने पास है, ये है R हमने को फाइंड करेगा वहाँ। तो R हमारे पास का आ गया वी स्क्वायर बाई P1। okay, so it is 220 into 220 divided by P1 is 60। okay, now cancel out the things, you'll get your answer। so 6 3 220 into 22 divided by 6। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें ये आ जाएगा 11 3। नहीं नहीं ये नहीं कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 220 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 3। अरे भाई ये इतना ज्यादा आ गया क्या। इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या। 3 3 7 जार 110 3 3 जार 9 73.3। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। क्वेश्चन कहीं फंस ना जाए, वेट लेट मी चेक, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। P
इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर सही है, फॉर्मूला सही यूज कर रहे हैं, दूसरा यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, करंट तो है ही नहीं अपने पास, वी स्क्वायर आर निकालना है तो करंट तो निकालना पड़ेगा आई, निकाल दे अगर डायरेक्टली तो उससे काम हो सकता है क्या? वी है अपने पास, पी और दिया हुआ है, आई अगर हम निकाल दे तो आई वन यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, ये भी यूज कर सकते हैं, देखो देखो देखो, दिमाग चमका 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 चमका। अगर P इज इक्वल टू वी आई अलग अलग से हम यूज कर दे, आर को छोड़ो गोली मारो, वैसे वो भी एक तरीका है कि आर वन निकाल लो, आर टू निकाल लो, दोनों को कंबाइन कर लो तो एक आर इक्विवेलेंट आएगा, उसके बाद वी इज इक्वल टू आई आर लगा दो तो वो आ जाएगा। दूसरा मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस वाले पॉइंट में अगर P दिया हुआ है मेरे पास, ओके, और वोल्टेज मेरे को पता है कि 220 वोल्ट ही है, ठीक है, यहाँ से अगर मैं आई निकाल लूँ जो कि आई वन होगा और यहाँ से मैं उसको सॉल्व करके आई टू निकाल लूँ तो मुझे पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई नेट जो आता है विच इज आई वन प्लस आई टू, देखा, दम दिमाग चमकाना होता है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं ये करने जाऊँ ना, कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन लंबा चला जाएगा, ठीक है, टाइम खा जाएगा आपका। तो यहाँ से हम बेटर है P इज इक्वल टू वी आई यूज कर ले, सच दैट आई इज इक्वल टू पी बाई वी यूज कर ले। P है अभी अपने पास 60 डिवाइडेड बाई वी कितना है, 60 है ना, ठीक है। अच्छा, मैं बेटर है इसको मैं आई वन लिख लूँ, आई वन लिख लूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, पी वन, ठीक है। तो 60 और डिवाइडेड बाय अपने पास हो गया 220 वोल्ट, ये थोड़ा ज्यादा इजी है, ठीक है। 3/11 ये एक वैल्यू आ गया किसका, आई वन का। सिमिलरली 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 P2 को हम लिख सकते हैं VI2, तो यहाँ से I2 का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, P2 डिवाइडेड बाय V, ठीक है। तो P2 अपने पास क्या आ रहा है, 40 है ना, कोई गलती नहीं करने का, ठीक है, 40, दिस इज 40 डिवाइडेड बाय 220, फिर से वही बात आ गई, 211, तो एक आ रहा है अपने पास 3/11, एक आ रहा है 211, तो आई नेट हम बोल सकते हैं आई वन प्लस आई टू विच इज 2/11 प्लस 3/11 विच इज इक्वल टू 5/11, क्या, एम्पियर रे लाला, एम्पियर, ठीक है। एम्पियर में यही निकालना था क्या, और कुछ निकालना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, आ गया भैया आ गया, खत्म खत्म खत्म, नहीं जाना इस वाले मेथड में, नहीं जाने का, इस वाले मेथड में जाएगा तो डूबेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा आएगा, ठीक है, हो गया, ओके। सो 5/11 इज योर आंसर, क्लियर, क्लियर हुआ, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नहीं क्लियर हुआ वापस जाने का, फिर से देखने का, टेंशन क्या है रे, वीडियो आपके लिए पड़ी हुई है इधर, ठीक है, पर पड़ी हुई है इसका मतलब ये नहीं कि प्रोक्रेस्टिनेट कर लो कि अरे देखेंगे कभी किसी जमाने में, उस जमाने तक लोग बुढ़े हो चुके होंगे, तुम यही लेक्चर थोड़ी देखते रहोगे, पढ़ोगे लिखोगे, अपना भी लेक्चर बनाओगे कि देखते रहोगे बस, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम ड्रॉपिंग द पेन, ट्राई इट, ट्राई इट, चलिए ये क्वेश्चन कर ले, ठीक है। देखो ट्राई करना है होमवर्क, नहीं सर आप कर दो ना थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है कर देते हैं थोड़ा सा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा होगा आपको, अगर आपने ट्राई किया है, ठीक है, ट्राई नहीं किया है फिर वीडियो पॉज करिए और ट्राई कीजिए, ठीक है। ओके, लेट अस डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बल्ब है विच इज ऑफ पावर 60 वॉट एंड वोल्टेज इज 220 वोल्ट, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एक रजिस्टर है जिसमें कनेक्टेड है, सारी चीजें है, ये 20 वोल्ट का ये पावर है और ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। नाउ इफ वी चेंज द पावर, चेंज कर ले, वोल्टेज चेंज कर ले, कुछ भी चेंज कर ले, रेजिस्टेंस तो सेम रहने वाला है ना, थिंक 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 थिंक, कि आर जो रेजिस्टर जो है जितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा वो तो हमेशा सेम रहेगा, तो अगर हम यहाँ से कैन वी राइट पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो यहाँ से आर का वैल्यू मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आई कैन राइट वी स्क्वायर बाय पी, वी है हमारे पास 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय, फिर से ये इंसान जो है फिर से मेरे को उसी पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया, कोई बात नहीं इस बार करना पड़ेगा, आई कैन नॉट स्किप, मैं भाग नहीं सकता इधर अभी। 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, ये मेरे को छोड़ेगा नहीं, 311 220 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 3, बस यही तक कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करें क्या, सॉल्व करें क्या, अगर सॉल्व करोगे तो एक्चुअली हम एक काम करते हैं, इसको अभी यहाँ रहने देते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो काम आ जाएगा, क्योंकि हमें और कुछ करना है, ठीक है। अभी क्या बोला कि मेरे को पावर अभी मालूम नहीं होने का,
ठीक है। बट वो वोल्टेज को चेंज करा कितना 110 वोल्ट पे, बट मेरे को रेजिस्टेंस मालूम होने का विच इज 220 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 3, ये फिक्स है। तो यहाँ से P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर फिर से लगा दे, ठीक है, तो हमें पावर मिल जाएगा। देखो करके देखते हैं, टेंशन क्या लेने का। अभी भी देखो 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय, एक्चुअली हमें वैसे ही छोड़ देना चाहिए था, पूरा कट जाता, कोई नहीं, ठीक है। 220 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर ले, 2 जा 11, 10 जा, दिस इज 5 जा 15 आ रहा है क्या? 15 आ गया क्या? मेरे को लग रहा है 15 वॉट आ रहा है आंसर, ये आ गया। देख कट गया ना। क्यों इसको सॉल्व नहीं करने का, हमेशा चुल नहीं मची रहनी चाहिए कि मेरे को सॉरी को सॉल्व करने का, सॉल्व लास्ट में करने का। ठीक है, 15 आंसर आ गया, 15 वॉट, क्लियर, इजी 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 चीजी। देख ले फिर से क्या किया, पावर हमारा 60 वॉट है, वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट है, तो पावर का फॉर्मूला वी नो दैट वी स्क्वायर बाय आर होता है। हमें पता है कि हम कुछ भी चेंज कर ले सर्किट में, पर आर से जो रेजिस्टेंस, रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू वो चेंज नहीं होने वाला है, तो आर जो है यहाँ से वी स्क्वायर बाय पी हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आया। फिर से हमने क्या करा, वोल्टेज चेंज कर दिया 110 वोल्ट। अब ये पूछ रहा है कि वोल्टेज चेंज करने पे हमारा पावर क्या रह जाएगा, तो पावर आता है वी स्क्वायर बाय आर, आर का वैल्यू यहाँ स्टार्टिंग वाला डाल दिया, वी स्क्वायर का वैल्यू डाल दिया, 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू 220 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 3, 3 को ऊपर लेके गए, ठीक है, कट कर दिया, 110 टाइम्स 2 जा, इधर कट गया, और ये 10 जा, 2 5 जा 10, ये कट गया, ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया पावर 15 वॉट, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सर 60 वॉट का था, अगर तुक्का लगाया कि वोल्टेज का हाफ हुआ तो पावर भी हाफ हो जाएगा, नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ। देखो पावर जो है 1/4 टाइम्स हो गया, ठीक है, तो तुक्का नहीं लगाने का, ठीक है, तुक्का नहीं लगाने का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, ठीक है, ये हमारा शायद क्वेश्चन नंबर 4 था। एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो यार, इतना क्या मास्टर से सारा करवाओगे हट पे। चल एक क्वेश्चन कर ले, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ अभी फिलहाल, जो सेम होगा जो मैं क्वेश्चन नंबर 5 अभी सॉल्व करने वाला, ये शायद क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क में ले ले, ठीक है, यू ट्राई दिस, ठीक है, इजी इजी, डोंट वरी डोंट वरी, ठीक है, नहीं करेगा, कर ले कर ले, एक क्वेश्चन कर ले, अगर फंसा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताता, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, नहीं ये तो अटक जाएगा, मेरे को पता होना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, ये लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन है दैट आई विल गिव यू इन द होमवर्क, वो इजी है, ठीक है, ट्राई करने का। फाइन, चार्ज को भी अभी खत्म होने का, कोई बात नहीं, ठीक है। Okay, now the question is saying an electric refrigerator is there rated 400 watt, मतलब कि पावर दिया हुआ भाई, ये 400 वॉट पावर दिया हुआ है, ऑपरेट्स 8 आवर अ डे, देखो टाइम दिया हुआ है फॉर्मूला में, देखो फॉर्मूला नहीं मैं इजी अभी यूज करने वाला, डोंट वरी, 8 आवर्स के लिए यूज होता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, अच्छा टाइम जो है हमारा 8 आवर्स पर डे है, और ऑपरेट कितने दिन के लिए कर रहा है, 30 डेज के लिए, तो टोटल कितना टाइम ऑपरेट किया, टोटल टाइम कितना ऑपरेट किया, देख लो देख लो देख लो देख लो, टोटल टाइम जो ऑपरेट किया इसने 30 इंटू 8 आवर्स ऑपरेट किया, मतलब कि 240 आवर्स इतनी ऑपरेट किया, और पावर इसका मशीन का क्या है 400 वॉट, ओके 400 वॉट। अच्छा इसको मेरे को जो है ना एनर्जी जो है, अगर मैं किलो वॉट आवर में ला दूं तो वही हमारा किलो वॉट आवर ही हमारा यूनिट है, ये चीज आपको ध्यान देने वाली है। और आंसर एक्चुअली क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 पर किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर पूछ लिए, यहाँ पर इसको यूनिट लिख लिए, बात दोनों सेम ही है, घुमा क्यों रहा है, ठीक है, तो दोनों बात सेम ही है, क्लियर हुआ, क्लियर है, ठीक है। अगर ये क्लियर हुआ तो यहाँ से हम करते हैं इसको किलोवाट, तो पावर जो हमारा वॉट में दिया हुआ, क्यों ना इसको हम किलोवाट में चेंज कर ले, तो किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, छी 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 छी, 400 डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे 2 0 गया तो 0.4 किलोवाट आवर आ गया। तो देख अपने पास पावर अभी मैं लिख देता हूँ 0.4 किलोवाट आ गया, और टाइम अपने पास आ गया 240 आवर्स, इजी है रे भाई, ये फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करने का। तो एनर्जी हमारा क्या आ जाएगा, बता 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 बता, एनर्जी क्या आ जाएगा, पावर इनटू टाइम आ जाएगा, अरे लाला देख ले देख ले देख ले देख ले क्या कर रहा है, पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम था ना, वर्क ही हमारा क्या है, वर्क ही हमारा क्या है, एनर्जी है, ओके। शक्तिमान ही श्रीधर है क्या नाम था, श्रीधर ही था ना, हाँ जो भी है,
एक वही है, पावर ही एनर्जी है, एनर्जी पावर है। तो यहाँ से एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, पी इंटू टाइम लिख सकते हैं, वही चीज मैं किया हूँ। पावर हमारे पास कितना है, 0.5 है, टाइम कितना है अपने पास 240 है, मल्टीप्लाई कर देना रे, 24 4 जा 96, 0 0 0 0 0 0, हाँ 96 kWh आ गया। जीरो से जीरो गया ये, क्या रे। अगर तू ये नहीं समझा ना, मैं उड़ा देगा। अभी हम एंड ऑफ चैप्टर कर रहे हैं, देख ले क्या इंसान है। देख इधर देख, 0.4 को हम लिख सकते हैं 4/10 × 240। अगर बेसिक मैथ हिला हुआ है ना तो जिंदगी हिल जाएगी, फिर मैं बता रहा है। तो 24 × 4 विच इज 96, कितना kWh, या फिर 96 यूनिट लिख ले, बात दोनों सेम ही है। ठीक है, इधर मेरा शकल आने का पता नहीं, इधर में कुछ कुछ कॉन्टेक्ट मिस होता था, ठीक से देखने का थोड़ा सा। ठीक है, हो गया ये यूनिट यूनिट यूनिट, हाँ हो गया। अच्छा हो गया क्या, आंसर आ गया? नहीं रे, नहीं आया। आंसर के लिए हमें मल्टीप्लाई भी तो करना है, रेट निकालना है। 3 रुपए लग रहे हैं एक यूनिट के लिए, 3 रुपए लग रहे हैं। तो 96 रुपए के लिए कितने लगेंगे, 3 कर देंगे। ये भी मैं करके दूं क्या यार, हट पे। इतना रुपीज हमें लग जाएगा, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, दिस इज द इजीएस्ट वन। ये ट्राई करने का, मन हो ट्राई करना, नहीं मन हो तो आपकी मर्जी, हमारा कहा जाता है उसमें। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगर कर लीजिएगा तो आपकी भलाई। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन का वर्ड्स चेक करने का ना। ठीक है, बाकी क्या है अपना। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अच्छा, इस चैप्टर का समरी में अभी देते चलूं या क्वेश्चन करने टाइम, आई गेस हमें जब क्वेश्चन करने होंगे ना उस टाइम एक बार रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अगले सेक्शन में अगले सेशन में हम मिलने वाले हैं इस चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। हो सकता है मैं वो चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पिक कर लूं, या फिर हो सकता है मैं दूसरा नया चैप्टर स्टार्ट कर दूं। बहुत आर पॉसिबल, बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं करूंगा, बहुत पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है, तो देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।